أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 136 یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جس نے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے ہم سب کا ایمان ہے اس عقیدے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر موت دے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں نہ تو معاف فرمائے گا، اللہ انہیں نہ تو معاف کرے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما للذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول، منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حامی بناتے ہیں۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حامی بناتے ہیں۔ امریکہ کافر ہے، کافر ملک ہے نا، اسرائیل کافر ملک ہے نا، اور جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنا حامی بناتے ہیں، جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ دیکھو جی آپ کے سامنے ایمان والے ملک، مسلمان ممالک کس طرح کافروں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہمارے ملک ہیں جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں لیکن امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ، ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے قرآن کریم قیامت تک اور جو گزر چکا، جو موجود ہے، جو قیامت تک واقعات ہوں گے ان سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اے رسول، منافقوں کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر
काफिरों को अपना हामी बनाते हैं, क्या ये लोग उनसे इज्जत की तवक्को रखते हैं? बेशक सारी इज्जत तो अल्लाह की है, बेशक सारी इज्जत तो अल्लाह की है। और क्या फरमाया? वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फिल किताबे अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फी हदीसिन गैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ। और बतहकीक अल्लाह ने पहले इस किताब में तुम पर यह हुक्म नाजिल फरमाया कि जहां कहीं तुम सुन रहे हो कि अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम उनके साथ न बैठा करो। हुक्म है, जहां पर अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा हो और अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो क्या हुक्म है? तुम उनके साथ न बैठा करो जब तक वो किसी दूसरी गुफ्तगू में न लग जाएं, वरना तुम भी उन्हीं की तरह के हो जाओगे। बेशक अल्लाह तमाम मुनाफिकीन और काफिरीन को जहन्नम में यकजा करने वाला है, जहन्नम में इकट्ठा करने वाला है, मुनाफिकीन को और काफिरीन को। तो ये हमारे लिए क्या है? सबक है कि जहां पर अल्लाह ताला की आयत को झुठलाया जा रहा हो, अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, वहां पर नहीं बैठना उस वक्त तक जब तक वो किसी और गुफ्तगू में शामिल नहीं हो जाते या शुरू नहीं कर लेते। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन काना लकुम फ़तहुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन काना लिल काफिरीना नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम वनमनअकुम मिनल मुमिनीन फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। ये मुनाफिक तुम्हारे हालात का इंतजार करते हैं कि अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हें फतह हासिल हो तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे? अगर फतह हासिल हो तो कहते हैं हम आपके साथ थे, हम क्या तुम्हारे साथ न थे? ईरान को फतह हासिल हुई तो लोग कहते हैं जी हम तो ईरान के साथ थे। अगर खुदा न खास्ता ईरान जब पहला हमला हुआ और बहुत ज्यादा शहादतें हुई तो क्या कह रहे थे? देखो जी ईरान के पास कुछ भी नहीं है, इन्होंने 40 साल किया क्या है, और ये जनाब मुल्ला मौलवी सारे इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने मुल्क में तरक्की नहीं की। अमेरिका का साथ दे रहे थे बातों बातों में, इसराइल का साथ दे रहे थे। जब ईरान ने मिसाइल दागे 12 दिन लगातार तबाह बर्बाद किया इसराइल को, फिर कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे? ये आज के दौर पे हम इसको लागू कर रहे हैं। वैसे कुरान पाक की आयत माजी के दौर, आज के दौर और कयामत तक आने वाले हर दौर के लिए है। ठीक है जी। क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसा कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और अगर काफिरों को कुछ कामयाबी मिल जाए तो उनसे कहते हैं क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर न थे? क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर न थे? यानी कि हम आपके खिलाफ नहीं लड़े, अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ हम नहीं लड़े ना आपके खिलाफ,
तब आपको ये कामयाबी मिली है थोड़ी सी। अगर हम उनके साथ मिल जाते तो आपको ये कामयाबी नहीं मिलनी थी। हमारा उनके साथ न मिलना आप लोगों की कामयाबी है। ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर न थे? इसके बावजूद हमने तुम्हारे साथ जंग न की। और क्या हमने तुम्हें मोमिनों से बचा नहीं लिया? ये कहते हैं, ये मुनाफिक हैं जो इस तरह की बातें कर। क्या हमने तुम्हें मोमिनों से बचा नहीं लिया? मोमिनों से बचा नहीं लिया। क्या बात है, कुरान मजीद की आयत है। बस अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला फरमाएगा और अल्लाह हरगिज काफिरों को मोमिनों पर गालिब नहीं आने देगा। हरगिज, अल्लाह का वादा है, सच्चा वादा है। क्या वादा फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? हरगिज 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 काफिरों को मोमिनों पर गालिब नहीं आने देगा। अल्लाह का वादा है, सच्चा वादा है। ठीक है ना जी। वो उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम भी यही रखा हुआ था, सच्चा वादा। वादुल सादिक। ईरान ने ये जो ऑपरेशन किया है, जंग की है, लड़ाई की है, हर एक ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया है ना, तो उन्होंने सच्चा वादा का नाम दिया है, वादुल सादिक का नाम दिया, अल्लाह का सच्चा वादा। एक आयत और पढ़ते हैं और यहीं पर मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊनन्नासा वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला इल्ला कलीला। ये मुनाफिकीन अपने ज़ौम में अल्लाह को धोखा देते हैं, यानी अपनी सोच में मुनाफिकीन क्या अल्लाह को धोखा देते हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह उन्हें धोखा दे रहा है। यानी अल्लाह ताला ने हमेशा उनको नाकाम करना है। और जब ये नमाज के लिए उठते हैं मुनाफिकीन, तो सुस्ती के साथ लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं। यानी पता चला जो नमाज सुस्ती के साथ पढ़े और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पढ़े तो वो भी मुनाफिक है। क्या है जी? सुस्ती के साथ उठते हैं, लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं और अल्लाह को कम ही याद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह करीम हमें कुरान मजीद, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना करने की और अमल करने की और कुरान पाक को सही समझने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये पैगाम आगे सदका जारिया के तौर पर पहुँचाने की हिम्मत, कुव्वत, हिदायत और तौफीक अता फरमाए, रियाकारियों से बचाए और हमारे लिए ये अमल, ये नेकी में शुमार फरमाए, तो शाय आखरत करार दे। और हमारे ज़माने के इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने में, उनके ज़ाहिर होने में जल्दी फरमाए, ताकि हम उनकी हुकूमत में, निज़ाम अदल में उनकी हुकूमत में ज़िंदगी गुजार सकें और खुशियाँ देख सकें। आमीन बिजाहिन नबी अल करीम व जवाहर मासूमिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।